Praise the Lord and welcome to Sunday Church. We're so excited that you could join us today, and we hope that you've come expectant to see what the Lord has in store for you. Now, before we start off, let's get into the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory. In Jesus' name, amen. Amen. We've got such an awesome service planned for you today. Now let's turn to our Father's Care worship team as they lead us into praise and worship. Praise the Lord, and to God be all the glory. We are so privileged to have you join us here this morning. So I want you to clap your hands. I want you to open up your mouths in a shout of triumph. For what's impossible for man is possible for our God. Amen. Come on, let's just give him glory. We worship you, Jesus, and we give you praise. Come on, open up your heart unto him. I'm not going to live by what I see. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're hearing me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Yes, Lord, I'm not gonna live by what I see. We sing. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're hearing me. I know that you can do Blind eyes are open.
So we just worship you right now. And we lift up our hands unto you like an evening sacrifice, Jesus. Heavenly Father, fall fresh on your people. Fall fresh upon your people right now. We cry out unto you, Jesus. We cry out unto you, Jesus. Come on, let's just worship him. Let's just worship him. Come on, just open up your heart. Open up your heart unto him. And lift up your hands unto him. Yes, Jesus. यीशु सी भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम गाए होसेना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुद। हम गाए होसेना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है
joy. Lord, we just worship you. We worship you, we worship you, we worship you. Let your presence fall. Let your presence fall in this place. Let something supernatural happen, Lord. We just trust in you and your power. Just as you are, Lord, so are we in this world. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Yes, I do. Just wanna be with you. King of glory, King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world, we sing. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can pray you now in victory, in victory. King of glory, King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Yes, we do, Lord. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. So I'll sing hallelujah. So we'll sing hallelujah till you come again. And I'll dance in your presence. And I'll dance in your presence till you come again. Sing hallelujah, sing hallelujah till you come again. Till you come again. Sing hallelujah, hallelujah till you come again. And I'll dance in your presence till you come again. Sing hallelujah. We can and I
Sunday Church, we hope you are staying safe and staying connected with one another. Even though we are not able to gather together in person right now, we want to encourage you to connect with us through our different avenues. If you have any prayer requests or in need of a person to talk to, simply contact us using the details on the screen to get in touch. Every Sunday night at 6 p.m, we are meeting on Zoom to take Holy Communion together as one family, as well as fellowship with one another. We definitely encourage you to join us online, ready to worship, pray, and fellowship with one another. We encourage you to continue your generosity and giving what belongs to the Lord. On the screen are our online account details which you can use to tithe. Now, let's prepare our hearts for the word and what the Lord has in store for us today. जहां से भी आज आप जुड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम के द्वारा हम आपको स्वागत करते हैं इस सभा पर। और आज का जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वो हम लेते हैं लूका के किताब 15 अध्याय और वर्स 14 से। लूक चैप्टर 15 और वर्स 14 से हम पढ़ेंगे। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं और इसमें इस प्रकार लिखा है, बट व्हेन ही हैड स्पेंट ऑल there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when, verse 17, but when he came to himself, said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Let's bow our head in prayer. Father, we say thank you this morning, Lord, for your word which is living and powerful. We believe your word will touch every heart, every soul this very moment. And we pray, oh God, that we bow before you to give you all the glory and honor. In Jesus' name, amen. आज जो हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से, इस जगह पर जहां से हम पढ़े वहां से थोड़ा पहले एक बंटवारा के विषय में बात होता है। इंसान जो है, हर एक इंसान में एक चाहत होता है। कई लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हम कुछ करें अपनी जिंदगी में, अपने पैरों पे खड़े होए, हम एक नाम को कमाए, एक इज्जत को कमाए, एक समाज में हमारा भी नाम रहे और पहचान रहे। ये हर एक के अंदर में है। ये सब कुछ होते हुए आज हम देखते हैं कि दो भाई और एक पिता के बीच में बंटवारा होता है, और ये बंटवारा लाने वाला उसका छोटा बेटा है, जिसके अंदर में ये बंटवारा की आत्मा है। वो सोचता है कि मैं अगर सब धन संपत्ति जो मेरे ऊपर पड़ता है मैं लेकर और अलग हो जाऊं, तो ये मुझे बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएगा। ये बंटवारे के आत्मा हजारों साल पहले आदम और ईव के समय में ये बंटवारा के आत्मा इस पृथ्वी पर आया, और उस समय से लेकर आज तक वही आत्मा है। कुछ बदलाव नहीं है, आत्मा वही है। लोग बदल गए हैं और समय बदल चुका है, लेकिन बंटवारा के जो आत्मा है वो वही आत्मा है जो आज मानव जाति को उसके पीछे पीछे लगा रहता है। बहुत से ख्यालात हमारे मन में आता है, सुबह से लेकर 24 आवर्स में आप देखेंगे कि बहुत से ख्यालात आते हैं। कुछ अच्छे ख्यालात आते हैं, कुछ बुरे आते हैं,
और कुछ कुछ बहुत बुरा होता है। ये बहुत बुरा में से है जो एक अच्छा खासा चलता जीवन को बंटवारा करता है। ये वही आत्मा है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, जिसने हमें अपने स्वरूप में और समानता में बनाया, वो परमेश्वर हम सबको एक जैसा देखता है, एक जैसा मानता है। और उस परमेश्वर से जब हम दूर हो चुके, वो परमेश्वर जो हमें बनाया है, बनाने के समय, बनाने के बाद उसने हर एक के अंदर में एक तोहफा, एक गिफ्ट आपके अंदर में दिया है। वो गिफ्ट इसलिए है कि उसी गिफ्ट के द्वारा, उसी तोहफा के द्वारा तुम अपने मंजिल में पहुंच सकते हो। उसी गिफ्ट के द्वारा जिस कार्य के लिए परमेश्वर तुम्हें धरती में बनाया है, वो काम तुम पूरा कर सको। वो गिफ्ट तुम्हारे अंदर में है। बाइबल कहता है, प्रोवर्ब्स 18 और 16 में कहता है, वो गिफ्ट, वो बहुमूल्य गिफ्ट, बहुत प्रेशियस है वो गिफ्ट, वो तुम्हारे अंदर में है। उसी गिफ्ट पर अगर तुम आज ध्यान देते हो, अगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अंदर में जो गिफ्ट है वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन लालच की आत्मा आने के बाद, ये जो लालच की आत्मा इस बेटे के अंदर में जो आया कि मैं सब कुछ लेकर और अपने आप में खड़ा हो और मैं अपने आप में चल सकता हूं और मुझे किसी को भी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। चाहे उसके लिए एक घर टूटे, चाहे उसके लिए एक संस्था टूटे, चाहे उसके लिए एक देश भी टूट जाए, उसे परवाह नहीं है। उस बात को वो परवाह नहीं करता। वो बात उसे कहीं पे लगता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा जो तुम्हें अलग करता है, तुम्हारे दिल और दिमाग में लेकर आता है कि मैं अकेले जी सकता हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है या किसी इंसान की जरूरत नहीं है मेरे जीवन में और मेरे मंजिल पहुंचते तक। ये छोटा बेटा जो है, सब धन संपत्ति लेकर और अपनी जिंदगी, एक नया जिंदगी शुरू करने के लिए एक नई जगह, एक नई देश में वो जाता है। उसका लाइफ जर्नी शुरू होता है वहां से। जैसे हम सब परमेश्वर को छोड़कर और इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि बाइबल कहता है, आई न्यू यू बिफोर यू एंटर्ड इनटू योर मदर्स वूम। जर्माया 1:5। भले मैं तुम्हें जानता था तुम अपने मां के गर्भ में जाने से पहले। इसके मतलब इंसान परमेश्वर के साथ था और हर एक इंसान को परमेश्वर एक कार्य के लिए भेजा, एक काम के लिए, एक मकसद है। हर एक इंसान के जीवन जो है एक मकसद है, इस पृथ्वी पर तुम क्यों हो। और परमेश्वर कहता है वही जर्माया 1:5 में कि मैं तुम्हें नियुक्त किया हूं, मैं तुझे ऑर्डेन किया हूं, मैं तुझे पुकारा है कि तुम जाकर मेरे काम को करोगे। हमेशा इंसान जहां भी है, हमेशा एक विचार है अंदर कि हम खुद को, अपना आप को संभाल लेंगे। हमें किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं, हमें किसी परिवार, किसी रिश्ते की जरूरत नहीं, हमें किसी संस्था की जरूरत नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये बात हमारे अंदर में शैतान लेकर आता है। ये बात बगीचा में यही शैतान लेकर आदम और यहोवा के बीच में लेकर आया परमेश्वर के साथ में। आज वही आत्मा आपको और सारी दुनिया को
यही आत्मा तंग करता है, बंटवारा की आत्मा। जो भी कुछ तुम बनाने चाहते हो, बना नहीं सकते, क्योंकि ये आत्मा तुम्हें तंग करता है। लेकिन तुम्हारे जिंदगी, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे बच्चन के भविष्य, तुम्हारे संस्था के भविष्य, तुम्हारे देश के भविष्य, तुम्हारे गांव के भविष्य, वो सब तुम्हें दिया है, तुम्हारे अंदर में है। क्योंकि हर एक इंसान में एक सलूशन है। दूसरों के समस्या के तुम एक सलूशन है, और कुछ नहीं है। दूसरों का जो समस्या है उसका सलूशन है। अगर परमेश्वर आपको डॉक्टर बनाया है तो दूसरों के बीमारी के लिए। अगर हाथ में आज तुम घड़ी पहना है, इस घड़ी में समय के बताने वाला सलूशन है। Everything that you see around you and everybody that you see around you, they are just a solution for every problem. They are just a solution. हर एक इंसान के अलग अलग गिफ्ट है, और वो गिफ्ट तुझ में है। बाइबल कहता है, ये बेटा अपना सब धन संपत्ति खत्म हो गया, इसके पास में कुछ नहीं बचा, और ये जाकर जानवरों के संगे रहना शुरू किया। कल तक जो पिता के पास में सब कुछ था, धन संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ, आज सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि ये बेटा खुद को, अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। सब कुछ खत्म होने के बाद बाइबल कहता है कि एक ऐसा किसान के पास गया जिसके पास में बहुत ढेर सारे पिग, सूअर थे, और ये सूअरों के लंबाई में, यानी कि घेटा में, ये काम शुरू किया। उसको काम मिला, पैसे नहीं मिला लेकिन काम मिला। अब ये बेटा वहां काम करता है, उन सूअरों के बीच में बढ़ता है। बाइबल कहता है ये सूअरों के तरह सोचने लगा, ये वो जानवर की तरह सोचने लगा। आप जानते हो जानवर में कोई फीलिंग्स नहीं है, जानवर में कोई पहचान नहीं है, जानवर किसी को भी नहीं पहचानेगा। बाइबल कहता है कि यह व्यक्ति इस जानवर की तरह उसका भोजन शुरू किया खाने के लिए, क्योंकि उसके सोचने का जो ढंग है, उसका जो दिमाग में एक बात बैठ गया कि वो जानवर से कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ एक जानवर है। और बाइबल कहता है बहुत साल जानवर के घेटा के साथ में, जो जानवर के बीच में रहते रहते तंग हो गया, क्योंकि उसके अंदर से रोता है वो कि मैं इसी काम के लिए क्या बना हूं, जिसमें ना मैं खुश हूं, ना मेरा कोई जिंदगी है, कोई मेरा लाइफ नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक इन जानवर के बीच में मैं रहता हूं। ना ये जानवर मुझे समझता है, ना मैं इनको समझता हूं। कभी सोचा जिसके तुम समझता नहीं है और जो तुम्हें नहीं समझे, और तुम दोनों के एक रूम में बंद कर दिया जाए, कितना देर तुम रहेगा उसके साथ? अपने आप को तुम क्या कहोगे कि हे परमेश्वर, क्या इसी दिन के लिए हम बना है? कितना बार आपने कहा, क्या हम इसी जीवन जीने के लिए बना है? सुबह वो एक नौकरी करता है
और मोगज भरता है, और मोगज भरते भरते बुढ़ा गया, आप तुम्हारे उम्र ढल गई, तब तुम एक सवाल पूछते हो कि हे परमेश्वर, अगर तुम है तो कहां है? क्या मेरा जीवन का मकसद यही है? ऐसे मुझे जीना है? उन जानवरों के बीच में जीना है? उन जानवरों के साथ रहना है? इस सवाल को कई लोग करते हैं आज, चाहे किसी भी देश में आप क्यों ना हो। ये सवाल कई एक लोग इस सवाल को करते हैं रात दिन। फ्राइडे होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वीकेंड आता है, लेकिन मंडे मॉर्निंग बैक टू बेस, यू हैव टू गो बैक टू योर वर्क, और वो काम आप करते हो जो काम तुम्हें पसंद नहीं है। लेकिन आज उस जगह पर फंसा है, ना तुम्हें वहां बैठता बने, ना वहां से उठ के भागता बने, तुम बीच में फंसा है। क्या ऐसा जिंदगी कभी सामना किया? Did you ever experience such a life? ऐसा समय कभी आया तुम्हारे जीवन में, ना बैठते बने ना भागते बने, और तुम फंसा है। परमेश्वर के छोड़ने के बाद, मां के पेट से जन्म लेने के बाद, जो कुछ तुम्हें समाज सिखाया आज तक, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस रीति से तुम अपना जीवन को व्यतीत करना है, जो कुछ तुम्हें समाज सिखाया, बस उतना ही तुम जानते हो। अपने दिल और दिमाग से कुछ भी नहीं सोचा। जिस देश में तुम है, जिस गांव में जहां पर है, जिस लोग के बीच में है, जो कुछ वो सिखाया तुम्हें बचपन में, आज तुम वही है। उस बचपन के सिखाई का फल है तुम। उसके छोड़ और आप कुछ नहीं जानता। जो रीति रिवाज, जो ट्रेडिशंस है, जो कुछ बताया गया कि इस तरह से हमें जीना है, बस वही सीखा। आप जो भी है, बस यही सीखा और यही लेके चला है। कब तक, आखिर कब तक ऐसा चलते रहोगे? कब तक इस जिंदगी को तुम जियोगे और बोलोगे सबके बीच में कि ये हमारा समाज है, ये हमारा रिवाज है, हम ऐसे पहनते हैं, ऐसे ओढ़ते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे हम बातचीत करते हैं। ये मानव जाति ने बनाया, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर जब अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया, उसने तुम्हें पूरी आजादी दी। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया ताकि तुम आनंद जीवन पाओ और बहुतायत से। Jesus said in John 10:10, I have come that you may have life and life in abundance, that you may lack nothing. I have given you wisdom, knowledge, understanding. I have well equipped you with information. If there is no information, there will be no transformation in your life. कई बार इन जानवरों के बीच में ये उन्हीं जानवरों की तरह अपना जीवन को व्यतीत करता था। बाइबल कहता है वर्स 17 में, but when he came to himself, he said,
How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? इंसान एक दिन अपन आप में आया. Bible says he came to himself. Hallelujah. He came to himself. ये आना बहुत जरूरी है हर एक इंसान के जीवन में. अगर तुम आज अपनी जिंदगी से थक गए हो, आज अपने जीवन में सब कुछ सोचता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, मैं बताना चाहता हूं इस सुबह कि बाइबल कहता है, परमेश्वर ने वादा किया है, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए. और बहुतायत के मतलब यह है कि तुम वो जीवन को जीते हो जिसमें हरा भरा है, तुम्हारे लिए किसी चीज की कमी और घटी नहीं है, और इतना ज्यादा है कि आज उसमें से आप निकाल के एक दूसरा दुखी को, एक दुखी इंसान को मदद कर सकते हो, एक समाज को मदद कर सकते हो, एक देश के लिए तुम खड़ा हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे में परमेश्वर वो बुद्धि, वो ज्ञान दिया है. He filled you with wisdom, knowledge, and of course great understanding. You have the power and ability to be a help to a nation. It could be anything. लेकिन उन जानवरों के बीच में तुम फंसा है. रात दिन जो भोजन वो करते हैं वो आप खाते हो, क्योंकि तुम उन्हीं की तरह सोचते हो, उन्हीं की तरह बैठते उठते हो. निकलना है वहां से हमें. जो भी है आप, उस बंधुआई से निकलना है. वो सोच जो है, वो सोचने का ढंग जो है, वो बदलना है. अगर आज तुम्हें यह ज्ञान मिलता है परमेश्वर का वचन, आप मेरे साथ खड़ा, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए, घराने के लिए प्रार्थना करेंगे. और प्रभु यीशु ने कहा, पुकार मुझे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, और ऐसी ऐसी गुड़ गुड़ बातों को बताऊंगा जो तुम नहीं जानते. बाइबल सेज, जीसस सेड, कॉल unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you do not know. ऐसा कई एक गुड़ गुड़ बातें जो तुम्हारे मसीहा के पास है, जो तुम नहीं जानते, जो मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर जानता है. उसने कहा, पुकार मुझे. और यह बेटा उस बात को समझा, सुना, और उसने कहा कि हे परमेश्वर, हमारे पिता के घर में किसी चीज की कमी नहीं है. नौकरों के पास इतना ज्यादा खाने पीने के लिए चीज, कभी उनके जीवन में किसी चीज की कमी और घटी नहीं है. और मैं यहां तड़सता हूं एक अच्छा सा जीवन, एक नींद भी अच्छा मिले सके. Hallelujah. The Bible says, verse 18, I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. बाइबल कहता है कि ये बेटा ने उठा और कहा कि ये जो जीवन में आज तक जीता रहा, आप जो सुनते हैं, आज अगर उस बंधुआई में आप जीते हो, अगर आप उस प्रकार जीते हैं जैसे इस बेटा ने जानवर के बीच में जिया, शायद तुमसे गलती हुआ, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, ये बेटा वहां से बैठा नहीं. इस बात सुनने के बाद में ये बेटा ने उठकर खड़ा हुआ. जहां भी तुम है, तुम सुनते हो,
यह समय है वहां से उठने के लिए। और बाइबल कहता है कि वो उठा और अपने पिता की ओर, अपने पिता के घर की ओर बढ़ता चला गया। बहुत दूर से उसके पिता ने अपने बेटे को पहचान लिया कि वो आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जहां से भी तुम सुनते हैं आज, ये बाप हमारे जो आसमानी बाप है, जो हमारे स्वर्गीय पिता है, ये रात और दिन उस राह को देखता है जिस राह पर तुम है। तुम्हारी ओर इसके निगाह है, सुबह से लेकर शाम, फिर सुबह होता है 24/7। वो देखता है उस रास्ते को कि मेरा बेटा कब वापस मेरे पास आएगा। बहुत दूर से देखने के बाद बाइबल कहता है ये पिता ने उठकर और दौड़ पड़ा। जब उसने दूर में देखा अपने बेटे को, दौड़ते गया और उसको गले लगा, उसके गले को पकड़कर बहुत रोया दोनों। जहां भी तुम है, आज प्रभु यीशु तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है, अपने दोनों हाथों फैलाए तुम्हारे सामने खड़ा है और कहता है बेटे तुम मेरे पास आ। He's saying, come unto me, I'll give you rest. प्रभु यीशु खड़ा होकर कहता है तुमसे, जहां भी तुम सुनते हो, कि हे भोज से दबे और थके मंद लोग मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु यीशु कहता है कि आ मेरे बेटे मेरे पास आ। गले लगने के बाद में बाइबल कहता है कि उसने वर्स 22 में कहा कि bring out the best robe and put it on him and put a ring on his hand and sandals on his feet. 3 गिफ्ट आज तुम्हारे लिए परमेश्वर रखा है। ये 3 गिफ्ट अगर आज तुम प्रभु यीशु के पुकारते हो, ये 3 गिफ्ट तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे लाइफ के लिए ये रखा है। वो पहला है, वो रोब है। प्रभु यीशु ने कहा लिविटिकस 17 और 11 में कि मेरा जो खून है, इस खून से मैं तुम्हें ढांकता हूं तुम्हारे गुनाहों को। मैं अपने खून से तुम्हारे गुनाहों को ढांकता हूं। मैं अपने खून से, प्रभु यीशु के खून से तुम्हारे हर एक गुनाहों को, हर एक पाप को मैं धोकर साफ करता हूं, ताकि तुम साफ हो जाओ। वही है वो रोब जो उसके ऊपर, अपने बेटे के ऊपर छोड़ता है। दूसरा बाइबल कहता है उसने एक छल्ला जो जिसमें अथॉरिटी है, जिसमें ताकत है। उन दिनों में अगर तुम्हारे पास वो छल्ला है तो तुम्हारे पास में वो अथॉरिटी है। किसी भी दुकान में जाकर वो छल्ला को दिखाओगे, जो कुछ तुम्हें लेना है तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो छल्ला के पीछे एक अथॉरिटी है। और वो छल्ला उसको पहनाया और कहा कि बेटा आज से ये अथॉरिटी मैं तुम्हें देता हूं। Jesus said, Luke 10:19, I give you the authority to trample upon serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. यह परमेश्वर का अथॉरिटी तुम्हारे लिए आज है। तीसरा उसने कहा कि bring sandals on his feet. Put sandals on his feet. Bible says, परमेश्वर के जो वचन है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पांव के लिए वो ज्योति है। परमेश्वर का पवित्र और बहुमूल्य वचन तुम्हारे पांव के लिए वो ज्योति है। Is a lamp to your feet. This morning, आज सुबह मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन तुमसे बातें किया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु तुम्हारे हृदय को छुआ है
आज ये 3 गिफ्ट लेकर प्रभु यीशु तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रार्थना के द्वारा आज प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। आप जहां भी है, आप अपने आंखों को बंद कर लें और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे महान परमेश्वर, तुम्हारे लोग आज जहां पर है प्रभु यीशु, जितनों ने भी तुम्हारे पवित्र वचन को सुना है, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में तू कार्य कर प्रभु यीशु। तेरे जैसा और कोई नहीं है प्रभु। तू समझता है, हर एक के मनों को समझता है, हर एक के दिल के धड़कन को तू जानता है। हर एक के दुख तुम्हारे सामने है प्रभु, किसी भी चीज से छिपा नहीं है प्रभु। आज जो भी मांग है, लोग के मांगों को तू पूरा करेगा। और आज रास्ता बना कि तेरा वचन इन लोगों के पांव में एक ज्योति बन सके, ताकि प्रभु यीशु तू इन बच्चों के आगे आगे चलेगा और हर एक उबड़ खाबड़ रास्ते को चौरास बनाएगा। धन्य है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सब मिलकर कहे आमेन, आमेन।